Hi students, now sum number 11. The second, third and fourth central moments of a frequency distributions are respectively 100, 120 and 50, 20. Find skewness and kurtosis of the distribution based on moments. Right? तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 100, 120 एंड 50, 20. राइट. सो सेकंड, थर्ड मोमेंट सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स हमें यहाँ पे μ2, थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स μ3 एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स हमें यहाँ पे μ4 की वैल्यू दी हुई है. राइट. सो μ2 is 100, μ3 is 120 and μ4 is 50, 20. Then बोला है कि find skewness and kurtosis of the distribution based on moments. Okay. So now question number 11. First central moment हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है. दी क्या है? second central moments. μ2 is 100, third central moment μ3 is 120 and fourth central moments μ4 is 5020. Then find क्या करना है कि skewness means हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है β1 की. Then second is kurtosis means β2. राइट. सो β1 एंड β2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. फर्स्ट स्क्यूनेस मीन्स हम क्या फाइंड करेंगे? β1. सो फॉर्मूला ऑफ β1 इज कि μ3 स्क्वायर अपन μ2 क्यूब. राइट. सो वैल्यू ऑफ μ3 थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स इज 120. सो 120 स्क्वायर अपन μ2 cube. So value of second central moment is 100 cube. So 120 का स्क्वायर ऑफ 120 means 120 का स्क्वायर हमें मिलेगा 14,400 एंड 100 का क्यूब means 10 lakh. राइट. सो 14,400 को डिवाइड करेंगे 10 लाख से. सो वैल्यू ऑफ B1 हमें मिलेगी 0.0144. ओके. देन सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है कुर्तोसिस की. सो कुर्तोसिस मीन्स β2. सो फॉर्मूला ऑफ β2 इज μ4 अपन μ2 स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ μ4 इज 5020 upon μ2 square. So value of μ2 is 100 means 100 square. So 5020 upon 100 square means 10,000. Right. So divide करेंगे. So value of kurtosis means β2 हमें मिलेगी 0.5020. Right. सो अगर हमें सेंट्रल मोमेंट्स दी हुई हो एंड हमें स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस फाइंड करनी हो तो हम इस तरह उसे फाइंड कर सकते हैं. ओके. देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12. द फर्स्ट 4 रो मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशंस आर 1, 4, 10, 46 respectively. Find first 4 central moments and β1, β2. Right. So first 4 central moments हमें दी हुई है 1, 4, 10 and 46. So μ1 dash is 1, μ2 dash is 4, μ3 dash is 10 and μ4 dash is 46. फाइंड क्या करना है कि फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स हमें μ1, μ2, μ3 एंड μ4 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड β1 एंड β2. ओके. सो फर्स्ट हमें जो रो मोमेंट्स दी हुई है उसका यूज करके
we find first four central moments and then central moments का यूज करके find करेंगे beta 1 and beta 2 की वैल्यू. Okay, so question number 12. First row moment means mu 1 dash is 1, mu 2 dash is 4, mu 3 dash is 10 and mu 4 dash is equal to 46. देन हमें फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करनी है फर्स्ट. तो यहां पे लिखेंगे सेंट्रल मोमेंट्स, राइट, सेंट्रल मोमेंट्स. सो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स mu 1 is always 0, right, mu 1 is always 0. Then second central moment mu 2. Formula is mu 2 dash minus mu 1 dash square. So value of mu 2 dash is 4. So equal to 4 minus mu 1 dash square means 1 square. So equal to 4 minus 1 equal to 3. So this is the value of mu 2 means second central moments. Now third central moments means mu 3. Right, so mu 3 is equal to mu 3 dash minus 3 mu 2 dash mu 1 dash plus 2 mu 1 dash raised to 3. So equal to mu 3 dash is equal to 10 minus 3 mu 2 dash equal to 4. Then mu 1 dash equal to यहाँ पे है 1, so into bracket 1 plus 2 mu 1 dash cube, so mu 1 dash equal to 1, so यहाँ पे लिखेंगे 1 cube, so equal to 10 minus 3 into 4 into 1, so 3 4s are 12, then plus 2 into 1 cube, 1 cube is 1 and 1 2s are 2, so 10 minus 12, so minus 2 plus 2 0, right? So this is the value of mu 3 means third central moments. Now find fourth central moments mu 4. So mu 4 equal to formula is mu 4 dash minus 4 mu 3 dash mu 1 dash plus 6 mu 2 dash mu 1 dash square minus 3 mu 1 dash raised to 4. So is equal to mu 4 dash. So mu 4 dash की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 46. So 46 minus 4 into mu 3 dash. So 4 into bracket mu 3 dash is 10. And second bracket mu 1 dash is 1. Then plus 6 into mu 2 dash. So mu 2 dash is 4. So in bracket 4 and mu 1 dash square. So mu 1 dash is 1. So 1 square. Then minus 3 mu 1 dash raised to 4. So mu 1 dash is 4. So 1 raised to 4. So equal to 46 minus 4 into 10 into 1. So 4 tens are 40. Then plus 6 into 4 into 1 square. So 1 square means 1. 1 square is 1. 1 4s are 4 and 4 6 are 24. Then minus 3 into 1 raised to 4. So 1 raised to 4 is 1 and 1 3s are 3. So equal to 46 minus 46. 6 plus 24 30. 30 minus 30 is 3 means 27, right? So 27 is the value of mu 4 means 4 central moments. So हमने first 4 central moments find किसके लिए? So 12 question number 12 में हमें find करना था first 4 central moments and also find beta 1 and beta 2, right? So now अब हम find करेंगे value of beta 1 and beta 2, right? So first beta 1. So formula of beta 1 is mu 3 square upon mu 2 cube. So mu 3 square
So value of mu3 is 0. So 0 square upon mu2 cube. So mu2 cube means 3 cube. So यहाँ पे 0 divided by 27. So equal to हमें यहाँ पे बीटा 1 की वैल्यू मिलेगी 0. Then second value is beta 2. So formula is mu4 divided by mu2 square. Mu4 divided by mu2 square. So value of mu4 is 27. Then divided by mu2 square. So value of mu2 is 3. So 3 square. So 27 divided by 27 divided by 9. So 9 3s are 27. So value of beta 2 is equal to 3. Right? So 3 is the value of beta 2. So इस तरह अगर हमें रो मोमेंट्स दी हुई हो तो फर्स्ट हम सेंट्रल मोमेंट फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे. देन बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. Right? The mean of a frequency distribution is 5 and its second, third and fourth central moments are respectively 15, -20 and 400. Find the first 4 moments about origin. Okay? So हमें यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है the mean of a frequency distribution. राइट. फर्स्ट हमें मीन्स एक्स बार की वैल्यू दी हुई है कि एक्स बार है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 5. देन एंड इट्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स. हमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स दी हुई है जो क्या है कि 15, -20 एंड 400. देन हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 4 moments about origins. Right? Find the first 4 moments about origins means हमें क्या find करना है यहाँ पे कि रो moments. Right? कि first 4 moments about origin means हमें यहाँ पे जो origin के आगे की first 4 moments find करनी है. means हमें यहाँ पे रो मोमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी हुई कि फर्स्ट 4 रो मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन्स मीन्स mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश एंड mu4 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके. सो फर्स्ट हम लिखेंगे कि हमें मीन की वैल्यू दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 15 कि मीन एक्स बार इक्वल टू क्या है 5. देन सेकंड है सेकंड सेंट्रल मोमेंट mu2 इज 15. थर्ड सेंट्रल मोमेंट mu3 इज -20 एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट mu4 इज 400. देन हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन्स मीन्स हमें mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश एंड mu4 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके. सो फर्स्ट हम फर्स्ट जो mu1 डैश है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे मीन का यूज करके. राइट? कि फर्स्ट रो मोमेंट इज ऑलवेज मीन. ओके. अब तक हमने क्या किया था कि हमें वैल्यू दी हुई थी कि हमें एग्जाम्पल में वैल्यू दी हुई थी. सपोज वैल्यू दे देते थे कि mu1 डैश इज समथिंग and first 4 row moments about 5 is 3, 5, 4, 6. राइट? देन हमें यहाँ पे रो मोमेंट्स की वैल्यू दे दिया करते थे. तब हम क्या करते थे कि यहाँ पे जो वैल्यू होती थी सपोज 5 के अबाउट की वैल्यू हमें दी हुई हो तो हम 5 में 4 प्लस करते थे फर्स्ट रो मोमेंट्स एंड देन हम मीन की वैल्यू फाइंड करते थे. बट हमें यहाँ पे डायरेक्टली रो मोमेंट फाइंड करनी है. राइट? सो यहाँ पे हमारी रो मोमेंट क्या हो जाएगी जो हमारा यहाँ पे मीन होगा वो. राइट? जो हमारा यहाँ पे मीन होगा
वो हमारी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट रो मोमेंट्स की। ओके, सो हम लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे कि मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन is 5. So first moment about origin is 5, is also 5. So therefore first moment about origins means mu1 dash. So mu1 dash equal to 5. Then next हमें mu2 dash की वैल्यू चाहिए, राइट। सो हम mu2 की फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड सेंट्रल मोमेंट्स की, देन फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ mu2 dash, यानी कि सेकंड मोमेंट ऑफ अबाउट origin. ओके, सो नाउ mu2 formula is mu2 dash minus mu1 dash square. So therefore value of mu2 is 15. So 15 equal to mu2 dash. So value of mu2 dash वो हमें फाइंड करनी है, देन माइनस mu1 dash square. So हमने वैल्यू फाइंड की mu1 dash की 1. सो यहाँ पे लिखेंगे 5 स्क्वायर. So therefore 15 equal to mu2 dash minus 5 square is 25. Now 25 की जो साइड है वो चेंज करेंगे. So यहाँ पे 15 plus 25 equal to mu2 dash. So 15 plus 20, so 40 is mu2 dash. Right? So second moment about origin वो हमें मिली 40 means mu2 dash. Then थर्ड मोमेंट हम फाइंड करेंगे मीन्स mu3 dash. ओके, mu3 dash फाइंड करनी है तो फॉर्मूला mu3 की यूज करेंगे कि mu3 इज इक्वल टू mu3 dash माइनस 3 mu2 dash mu1 dash प्लस 2 mu1 dash रेज टू 3. ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ value of mu3 is minus 20. then equal to mu3 dash की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, then minus 3 mu2 dash वो हमें मिला 40. so in bracket 40 mu1 dash की वैल्यू मिली 5, then plus 2 5 raised to 3. so therefore minus 20 equal to mu3 dash, then minus 3 into 40 into 5. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 600 मल्टीप्लाई करेंगे तो, देन प्लस 2 इंटू 5 क्यूब. सो 5 क्यूब मीन्स 125 इंटू 2 मीन्स 250. सो देयरफॉर ये जो दो वैल्यू है उसे इस साइड लेके आएंगे. सो माइनस 20 माइनस 600, सो प्लस 600 एंड प्लस 250. सो दूसरी साइड ले आएंगे. सो माइनस 250 इक्वल टू mu3 dash. सो देयरफॉर माइनस 20 ये हो जाएगा माइनस 270. 600 में से 270 को माइनस करेंगे. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 330. दिस इज द mu3 dash. ओके, मीन्स थर्ड मोमेंट अबाउट ऑरिजिन. देन नाउ लास्ट फोर्थ मोमेंट फाइंड करेंगे. सो mu4 इक्वल टू mu4 dash माइनस 4 mu3 dash mu1 dash प्लस 6 mu2 dash mu1 dash square minus 3 mu1 dash raised to 4. So therefore value of mu4 is 400 इक्वल टू वैल्यू ऑफ mu4 dash वो फाइंड करनी है. देन माइनस 4 वैल्यू ऑफ mu3 dash इज वो हमें मिली 330. mu1 dash
वो हमें मिला 5 प्लस 6 म्यू 2 डैश वो हमें मिली है 40 देन म्यू 1 डैश स्क्वायर वो वैल्यू हमें मिली है 5 सो 5 स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश रेज टू 4 मीन्स 5 रेज टू 4 सो देयरफॉर 400 इक्वल टू म्यू 4 डैश माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 330 एंड 5 से सो 4 इंटू 330 इंटू 5 सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 6600 प्लस 6 इंटू 40 इंटू 5 स्क्वायर सो 5 स्क्वायर 25 इंटू 40 इंटू 6 सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 6000 देन माइनस 3 इंटू 5 रेज टू 4 राइट सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 1875 नाउ ये जो वैल्यू है उसे उसकी साइड चेंज करेंगे एंड म्यू 4 डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे सो देयरफॉर 400 प्लस 6600 माइनस जो प्लस 6000 थे साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगी देन माइनस 1875 सो प्लस 1875 इक्वल टू म्यू 4 डैश राइट अब इसे सॉल्व करेंगे कि 400 प्लस 6600 माइनस 6000 प्लस 1875 सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2875 राइट 2875 दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू 4 डैश सो म्यू 4 डैश यानी कि फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमें मिली है 2875 ओके तो आपको डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स दी हुई हो एंड आपको मोमेंट्स फाइंड करनी हो ओरिजिन के लिए तब आपको क्या करना है कि फर्स्ट आपको फर्स्ट जो मीन दिया हुआ होगा वो आपकी फर्स्ट रो मोमेंट हो जाएगी राइट फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ ओरिजिन्स मीन्स म्यू 1 डैश वो वैल्यू आपकी हो जाएगी देन जो हमारे पास सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है उसका यूज करके हम फाइंड करेंगे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट्स ऑफ ओरिजिन ओके सो इस तरह इसे सॉल्व करना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कि फाइंड फर्स्ट रो मोमेंट्स अबाउट origin of the following probability distributions. Also obtain mean and variance of the distributions. Right? Then value दी हुई एक टेबल में वैल्यू दी हुई है x is equal to xi minus 1 0 1 and px 0.28 0.42 and 0.30 right? सो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड फर्स्ट फोर रो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन्स राइट ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देन ऑल्सो ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ओके सो हमें यहाँ पे रो मोमेंट्स फाइंड करनी है मीन्स म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश एंड म्यू 4 डैश किसका यूज करके ये जो हमें एक्सआई एंड पी एक्सआई की वैल्यू दी हुई है उसका यूज करके ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 राइट फर्स्ट कॉलम इज एक्सआई एंड सेकंड इज पी ऑफ एक्सआई राइट सो एक्सआई है -1 0 एंड 1 एंड सेकंड पी एक्सआई इज 0.28 0.42 and 0.30 ओके हमें फाइंड क्या करना है कि रो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन सो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन ओके
सो यहाँ पे फर्स्ट रो मोमेंट्स की फॉर्मूला हमारी होगी, ओके, कि हम यहाँ पे क्या लिखते थे कि सिग्मा एक्स आई इंटू एक्स बार अपन एन, राइट। ये फॉर्मूला का यूज करके हम फर्स्ट रो मोमेंट्स फाइंड करते थे, बट हमें यहाँ पे वैल्यू एक्स आई इंटू पी एक्स आई की दी हुई, राइट। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स मीन, राइट। सो हम यहाँ पे म्यू वन डैश की फॉर्मूला क्या हो जाएगी कि सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, कि फर्स्ट रो मोमेंट्स की फॉर्मूला होगी कि सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, ओके। सो फर्स्ट हम एक्स आई इंटू पी एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, टोटल वैल्यू, तब हमें मिलेगी फर्स्ट रो मोमेंट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एक्स आई इंटू पी एक्स आई का। सो -1 इंटू 0.28, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो -0.28, 0 इंटू 0.42, सो 0.42, एंड ये आ जाएगा 0.30, सॉरी ये तो 0 ही हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों का टोटल लेंगे, सो हमें मिलेगी 0.02, सो फर्स्ट रो मोमेंट इज 0.02। देन second row moments means mu 2 dash equal to sigma xi square into pxi, ओके। सो सेकंड कॉलम बनाएंगे xi square into pxi की। सो xi into pxi को xi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -0.28 मीन्स 0.28, 0 इंटू 0 मीन्स 0, 1 इंटू 0.30 मीन्स 0.30, सो टोटल वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0.58। सो सेकंड रो मोमेंट्स हमें मिल जाएगी 0.58। देन थर्ड रो मोमेंट्स मीन्स म्यू 3 डैश, सो फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स आई क्यूब इंटू पी एक्स आई। सो एक्स आई क्यूब इंटू पी एक्स आई की टोटल वैल्यू चाहिए, सो एक्स आई क्यूब इंटू पी एक्स आई मीन्स हमारे पास जो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई से, सो हमें एक्स आई क्यूब इंटू पी एक्स आई की वैल्यू मिलेगी। सो -1 इंटू 0.28, सो -0.28, 0 इंटू 0 0, देन 1 इंटू 0.30, सो 0.30, देन टोटल वैल्यू चाहिए, सो 0.02, राइट। सो हमें यहाँ पे म्यू 3 डैश यानी कि एक्स आई क्यूब इंटू पी एक्स आई की टोटल वैल्यू मिली 0.02। Then next fourth mu 4 dash formula is sigma xi raised to 4 into pxi। So यहाँ पे हम फोर्थ कॉलम बनाएंगे xi raised to 4 into pxi की। So now xi raised to 3 into pxi करेंगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे xi से। So -1 into -0.28, so minus plus, so 0.28, 0 into 0 0, 1 into 0.30, so 0.30, टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे, so 0.58, राइट। सो फोर्थ रो मोमेंट इज 0.58, राइट। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट 4 रो मोमेंट्स फाइंड की जो हमें एक्स आई इंटू पी एक्स आई की वैल्यू दी हुई थी, एक्स आई एंड पी एक्स आई की, उसका यूज करके, ओके। सो ये थोड़ा अलग टाइप का सम था, वो हमने किया। अगर आपको इसी एग्जाम्पल में सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने के लिए बोला हुआ होता, तब आपको क्या करना होता कि फर्स्ट एक्स आई एंड पी एक्स आई का यूज करके आपको रो मोमेंट्स फाइंड करना है, देन रो मोमेंट्स का यूज करके सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करना होगा, ओके। उस टाइप का क्वेश्चन है दूसरा कि क्वेश्चन नंबर 25 कि जिसमें आपको बोला है कि फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स ऑब्टेन फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स एंड हैंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस, राइट। सो हमें इस एग्जाम्पल में एक्स एंड पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, राइट। सो हमें फर्स्ट क्या करना होगा कि हमें सेंट्रल मोमेंट फाइंड करनी है। सो फर्स्ट हम रो मोमेंट फाइंड करेंगे
एक्स एन पी एक्स का यूज करके, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज की ना, उस फॉर्मूले का यूज करके हम फर्स्ट रो मोमेंट फाइंड करेंगे, देन हमें जो भी रो मोमेंट मिलेगी उसका यूज करके हम सेंट्रल मोमेंट फाइंड करें। ओके, सो अगर आपको एक्स एंड पी एक्स की वैल्यू दी हुई हो एंड बोला हो कि आपको सेंट्रल मोमेंट फाइंड करनी है, तब आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट 4 रो मोमेंट्स फाइंड करेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट फाइंड करेंगे। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हमारा ये थर्ड यूनिट का चैप्टर नंबर 2 जो मोमेंट्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन उसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो हम देखेंगे, वो तो सिंपल है, टोटल 2 वीडियो में ही, 2 लेक्चर में ही आपका जो ये लास्ट यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। ओके।